video our class. देखो NCERT first question. Yesterday we have discussed about what is angle of elevation, angle of depression, line of sight, and horizontal line. These four basic terms are related to this chapter, height and distance. We are known to these lines. Now क्या है ना, फर्स्ट मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताया था ना, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहा हूं, then angle formed by the line of sight and the horizontal line is called angle of elevation. Line of sight क्या है? Yes. The eye to object, the line segment joining eye to object is called line of sight. And horizontal line, horizontal line, a line parallel to eye to the ground. Ground का parallel eye से जो line पास हो रहा है, a line passing through eye and parallel to ground is horizontal line. ठीक है? और दूसरा और दो बात बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है? जब ऊपर देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन. इफ ऑब्जेक्ट इज बिलो माय आई साइट then it's angle of depression. If the object is above my eyesight, then it's angle of elevation. Clear? Yes, sir. Now question 1, NCERT question 1, first from your textbook. It's given a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं. तो यहाँ पे मान लो AC is my rope tightly, क्या बोला गया है, देखो रोप टाइटली स्ट्रेच्ड रोप, ठीक है ना. तो लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ द रोप इक्वल्स टू AC. यहाँ पे AC का वैल्यू कितना दिया गया है? It's 20 meter. So this is 20 meter. BC is my ground. BC equals to ground. और AB क्या है? The height of the pole. AB equals to height of the pole. मतलब ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड में इस पॉइंट में C पॉइंट में मैं रोप को बांधा हूँ. ग्राउंड मतलब ये इधर भी है और भी है, इधर भी है, और इस पॉइंट में मेरा एक पोल है B पॉइंट में, है ना. So this is the figure. Yes, sir. अब मुझे क्या बोला गया है, find the height of the pole. So you need to find out height of the pole. और एक एंगल मुझे दे दिया गया है, if the angle made by the rope with the ground. So angle made by the rope मतलब AC, made with the ground means BC. Angle made by the rope AC with the ground BC is 30 degree. Right? Yes, sir. Is it clear? So अब मैं देखूंगा, मुझे चाहिए AB. I need to find out AB. तो एंगल कंसीडरेशन, जो एंगल कंसीडर किया गया है यहाँ पे, कौन सा एंगल है वो ना, एंगल C. एंगल C अगर कंसीडर करूंगा तो मेरा बेस कौन सा एंगल हो जाएगा, बेस कौन सा साइड हो जाएगा, सॉरी, अगर C एंगल को कंसीडर करूंगा तो बेस कौन सा साइड हो जाएगा, BC. BC विद बेस. और इस एंगल का ऑपोजिट जो रहेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर. Perpendicular. AB will be the perpendicular, right? Yes, sir. So अब मुझे चाहिए AB. मैं AB और जो दिया गया है
मुझे दिया गया है AB चाहिए और मुझे दिया गया है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ऑलवेज राइट एंगल का ऑपोजिट साइड इज हाइपोटेनियस। तो राइट परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस लेके कौन सा टी रेशियो है? सर साइन थीटा। साइन थीटा। सो कौन सा ट्राइंगल में मैं अप्लाई कर रहा हूँ टी रेशियो ना? एबीसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, दैट इज साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी। अगर मैं 30 डिग्री एंगल सी को कंसीडर कर रहा हूँ तो बेस मेरा बीसी है, परपेंडिकुलर मेरा एबी है, so AB by hypotenuse is always AC. So sin 30 का वैल्यू बोलो, sin 30 का वैल्यू कितना होता है? sin 30 का वैल्यू 1/2. 1/2. so 1/2 equals to AB is not known to us, AC equals to given in our question, AC equals to here 20. अच्छा, this portion is not visible ना, No sir. इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। so half equals to AB by 20. so AB equals to 2 into 20 है ना, 20 by 2, sorry, AB equals to 20 by 2, that is 10 meters. Therefore height of the pole, therefore height of the pole, this line is called concluding statement. You need to give the concluding statement. Concluding statement means which one is your requirement, that must be written on the last of your answer. मुझे जो मांगा गया था वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या मांगा गया था? हाइट ऑफ द पोल, therefore मैं लिख रहा हूँ therefore height of the pole is 10 meter and this is my answer. In each cases, in each of the question, these lines you have to write. That means AB is the pole, AC is the rope, BC is the ground, angle ACB equals to 30 degree, this must be written. तो हर एक क्वेश्चन में ही ये लिखना है। मैं अभी ये तुम लोग खुद लिख पाओगे? Yes बाकी sir. सारे क्वेश्चन में ये पोर्शन मैं छोड़ दूंगा, ये तुम खुद लिख पाओगे। इसमें जो भी तुम एज्यूम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं क्या एज्यूम किया हूँ ना, AB is the height of the pole, so you have to write AB equals to height of the pole, AC is the 20 meter high rope, BC क्या है? BC is the ground. तो जो भी तुम एज्यूम कर रहे हो that must be written, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। ABC के जगह PQR भी कोई दे सकता है, XYZ भी कोई दे सकता है, तो तुम जो भी दे रहे हो that must be written. Clear? हो गया? Yes, sir. Yes sir. Now question number 2. यहाँ पे क्या दिया गया है? इरेज करें? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? ये ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top of the tree touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. Same. मान लेता हूँ let AB be the height. AB be the height. It breaks at the point C and broken part touches the ground at the point D. You have to write down the names.
नेमिंग तुमको दे देना पड़ेगा। लेट ए बी विद द हाइट, ठीक है, क्लियर। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द ट्री, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द ट्री, अब वो कौन सा पॉइंट में ब्रोक हो रहा है ना, इट ब्रोक्स Sir, एट board is it broke at the point C and broken part BC meet the ground AB at B। मतलब क्या है, मतलब BC और DC सेम है ना, क्योंकि BC तो गिर के ग्राउंड में पड़ रहा है। क्लियर है या ना बोलो? यस तो BC yes, sir. BC आर सेम। नाउ मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, दिस एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये दे दिया गया है। 30 degrees. और क्या दिया गया है, A to D का डिस्टेंस इज कितना, हाउ मच, 8 meters. 8 मीटर। मुझे चाहिए क्या ना, हाइट चाहिए, मींस AB, हाइट ऑफ द ट्री, Perpendicular. हाइट ऑफ द ट्री इज AB। तो इसका Yes, sir. तो AB को निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, क्या ना, एक बार AC चाहिए और एक बार CD भी चाहिए। क्यों? क्योंकि CD एंड BC आर सेम। क्लियर? यस सर तो हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू क्या होगा ना, AC प्लस हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द, अच्छा यहाँ पे BC इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे ना, BC इक्वल्स टू CD and height of the tree equals to height of the tree equals to क्या हो जाएगा ना, AC प्लस AB, हाइट ऑफ द ट्री मेरा AB है और AB को मैं AC प्लस BC लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है क्या जी? यस सर AC प्लस BC। नाउ AC एज यूजुअल है, BC के जगह मैं CD लिख सकता हूं क्योंकि BC एंड CD सेम है, राइट? ये ठीक है, BC एंड CD सेम है, इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं। क्लियर? Yes, sir. तो अब कौन सा ट्रायंगल में अप्लाई करूंगा ना, ये ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में मुझे AC भी चाहिए, CD भी चाहिए और मुझे दिया गया है AD और एंगल कंसीडरेशन है एंगल D, दिस एंगल, एंगल कंसीडरेशन दिस एंगल होगा तो AD मेरा क्या है, बेस या परपेंडिकुलर? Base. बेस। और बेस का इस एंगल का ऑपोजिट जो साइड होगा उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। Perpendicular. ठीक है, उसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, ऑपोजिट भी कभी कभी कहा जाता है। इंडिया में परपेंडिकुलर ही कहा जाता है, लेकिन अगर गूगल में या और किसी जगह में सर्च करोगे देखोगे ऑपोजिट करके भी लिखा हुआ है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में ऑपोजिट भी कहा जाता है, तो इंडिया में तो उसको परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, इसका ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे Yes, क्या हो sir. जाएगा, ACD। अब देखो AC चाहिए, BC मुझे AD दिया गया है, बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर चाहिए। बेस एंड परपेंडिकुलर लेके कौन सा T रेशियो है, कोई T रेशियो है ना बेस एंड परपेंडिकुलर लेके? Tan theta. tan थीटा। तो tan थीटा का इक्वल्स टू क्या होता है, P by B. P by B। तो यहाँ पे tan थीटा, tan का थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर मेरा AC है
और बेस मेरा एडी है। tan 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3. 1/√3। वेरी नाइस। सो AC बाय 8, यहाँ से मुझे मिल जाएगा AC इक्वल्स टू देखो 8/√3 मीटर होगा। ऑल्सो मुझे CD भी चाहिए। CD निकालेंगे कैसे? तो जो दिया गया है बेस और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस लेके कौन सा रेशियो है? Cos theta. cos theta. Theta equals to base by hypotenuse, that is cos 30 डिग्री equals to base मेरा है AD, hypotenuse मेरा है CD। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? cos 30 का वैल्यू कितना होता है? बोलो। √3/2. √3/2 √3/2 equals to AD मतलब 8/CD। तो यहाँ से CD इक्वल्स टू हो जा रहा है 16/√3। therefore हाइट कितना हो जाएगा? therefore height of the tree equals to 8/√3 plus 16/√3, that is 24/√3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो 8√3 हो जाएगा। वो तुम कर सकते हो, √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, so that will be 8√3 meter। clear? Yes, sir. so देखो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये हर एक क्वेश्चन में लिखना है, इतना दो क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए ट्री है तो ट्री, जब पोल रहेगा तो पोल, हाँ जो भी रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी रहेगा वो देना है, वो ऑलवेज देना है। ये जो मेन बॉडी है, ठीक है, ये तो हर एक क्वेश्चन के लिए सेम है, जो भी दिया गया है वो तुमको लिखना है। तुम जो एज्यूम कर रहे हो दैट मस्ट बी रिटन। ओके, okay sir. इरेज करें। Yes sir. कर लियो सब, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इरेज कर देना। Yes, sir. Yes sir. क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलरली देखो क्या दिया गया है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age 5 years, she preferred to have a slide of heights 1.5 meter and inclined at an angle 30 degree. So height मेरा बोल दिया गया है 1.5 मीटर और inclined at an angle 30 degree, ये बोला गया है, राइट? Which for the elder 3 meter and 60 degree, what should be the length of the slide? लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या होगा? हाइट कितना दिया गया है? 1.5। लेंथ ऑफ द स्लाइड मतलब क्या होगा? अगर मैं नाम दे दो ए बी सी, सो व्हिच वन विल बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड? लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या होगा? क्या गिवन? AC. AC इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो ये मेरा हाइट ए बी इक्वल्स टू 1.5 दे दिया गया है, 1.5 मीटर। तो ये क्या है? ये मेरा एंगल कंसीडरेशन है। तो 1.5 जो दिया गया है वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है या बेस है? ऑलवेज 90 डिग्री परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस लेके कौन सा टी रेशियो है? साइन थीटा। साइन थीटा। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ना, ए बी सी, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब ए बी बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पी बाय एच, ए बी बाय ए सी। देन साइन 30 का वैल्यू बोलो। 1/2. 1/2। सो ए सी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 1.5 by 1, that is 3। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। सिमिलरली अब क्या बोला गया है ना, अब हाइट डबल कर दिया गया है और एंगल भी डबल कर दिया गया है। नाम दे देता हूं, मान लो पी क्यू आर। अब बोल दिया गया है एंगल है 60 डिग्री और हाइट है 3 मीटर। तब मेरा क्या चाहिए ना, पी आर का वैल्यू चाहिए। सिमिलरली इन ऑफ द स्लाइड मतलब पी आर का वैल्यू चाहिए फॉर द एल्डर। यस हो गया फॉर द यंगर और ये हो गया फॉर द एल्डर। कर पाओगे? सिमिलर यस सर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी क्यू बाई क्यू आर। साइन 60 का वैल्यू √3/2, पी क्यू का वैल्यू 3, पी आर का वैल्यू बच्चों पी क्यू बाई पी आर। सो यहाँ से पी आर इक्वल्स टू 3 into 2 by √3, so 2√3 मीटर। तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। ठीक है, यस सर। आसान है ना? देखो ये एक यस सर। बहुत आसान है, हर कोई कर पाओगे। हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग कर पाओगे, होमवर्क दे रहा हूँ, 5 भी कर पाओगे, 5 6। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट डे बता दूंगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन तुम लोग खुद भी ओके ट्राई सर। करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इरेज करें इसको। यस सर। क्या दिया गया है, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे मान लो कोई काइट है, यहाँ पे काइट का पोजीशन, काइट यहाँ से ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर। अब लेकिन काइट तो ऐसे नहीं उड़ता है, काइट कैसे उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा। यहाँ पे कैसे कोई पोजीशन में मान लो ग्राउंड में, यहाँ पे है ना। अब क्या बोला गया है, काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लो यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ग्राउंड में सी पॉइंट में उसको टाइट करके रखा हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड में सी पॉइंट में इसको रखा गया है, ठीक है। अगर सी पॉइंट में रखा जाएगा तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे क्या बोला गया, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन मतलब द एंगल मेड बाय द काइट, रोप ऑफ द काइट, जो भी बोलो, स्ट्रिंग ऑफ द काइट विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मुझे चाहिए क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसी, यही ना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, हेलो सर एसी। एसी। अब देखो एसी चाहिए और मुझे दिया गया है ये वाला साइड, ये वाला साइड मतलब क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूं, तो बीसी मेरा बेस है और ए बी मेरा परपेंडिकुलर है।
बेस का जो एंगल कंसीडर हो रहा है उस एंगल का ऑपोजिट साइड हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, और उस एंगल के साथ जो अटैच साइड है वो हो जाएगा बेस। जो एंगल है वो एंगल ऑलवेज क्या होगा, एक हाइपोटेनियस के साथ रहेगा अटैच, और एक जो अटैच रहेगा वो क्या हो जाएगा उसका बेस, और उसका ऑपोजिट साइड जो है वो उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, ऑपोजिट भी कहा जाता है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस लेके कौन सा टी रेशियो है? तो साइन थीटा। तो साइन या फिर थीटा का वैल्यू मेरा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यस तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? AB, एंड हाइपोटेनियस मेरा क्या है? AC। AC अब वैल्यू पुट करता हूँ, साइन 60 का वैल्यू √3/2। √3/2 3/2, AB का वैल्यू सर 60 में तो AC इक्वल्स टू क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 20√3, 120√3/3, that is 40√3। AC का वैल्यू, मुझे हाइट ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द रोप ही मांगा गया था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही मांगा गया था, है ना? तो लेंथ Yes, ऑफ द sir. स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। Concluding statement you will need to write, therefore length of the string is 40√3 meters. Clear? ठीक है, समझ गए हो? Yes. तो देखो ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, अभी कोई टफ क्वेश्चन है ही नहीं। बेसिक से जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत सिंपल सिंपल लगेगा, और बेसिक से कब फाउंडेशन से कब अपर लेवल में चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना चाहिए। जब हम करते हैं कोई टॉपिक उस टाइम में क्या होता है उसको आसान लगता है, और यही क्वेश्चन टफ लगने लगता है बाद में प्रैक्टिस नहीं करते हो इसीलिए। और प्रैक्टिस तो हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरा प्रैक्टिस हो गया है, मुझे नहीं चाहिए प्रैक्टिस, वो तुम्हें ही करना है, वो नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। अभी भी ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो कोई आराम से बैठे हैं, कोई क्या कर रहे हो नहीं पता चल रहा, तो अगर तुम अभी मेहनत करोगे that will give a fruitful result to you for your life, that will be a fruitful। जैसे पेड़ लगाओगे उतना ही वैसे ही होगा, अभी पेड़ पे पानी दोगे तो वो पेड़ भी अच्छा होगा। ओके, नाउ इरेज करें। हेलो, Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक करके आज के लिए खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे जो भी मैसेज आ रहा है सारे मैसेज विजिबल है, ऐसा नहीं विजिबल कुछ नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया क्या गया है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter from a 30 meter tall building, 30 meter tall building है। ओके, तो ये मान लो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, और ये मान लो मेरा 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग का नाम दे देता हूँ एटी, और 1.5 मीटर टॉल बॉय का नाम दे देता हूँ सीडी। सो ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना दिया गया है, ये मेरा दिया गया है 30 मीटर, और ये 1.5 मीटर होगा तो इसका नाम दे देता हूँ सीडी, ई नाम दे देता हूँ। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, ये भी मेरा 1.5 होगा, ये 30 माइनस 1.5 दैट इज 27.5, कितना होगा 30 माइनस 1.5 मतलब 28.5. 28.5 ना, so 28.5।
अब मुझे क्या बोला गया है, the angle of elevation from his aisle to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. तो पहले क्या था ना, पहले था 30 डिग्री, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, बाद में वो 60 डिग्री हो जा रहा है। 60 डिग्री हो रहा है मतलब एंगल इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो आदमी जो है वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग जा रहा है, तब ना इंक्रीज होगा। Yes, sir. तो ये मान लो यहाँ पे आ गया है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 60 डिग्री। इस 60. पॉइंट का नाम दे देता हूँ F। ठीक है, अब क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कितना डिस्टेंस वो वॉक किया है ना, सी पॉइंट से एफ पॉइंट तक गया है, तो सी एफ डिस्टेंस ही वॉक, राइट। Yes, sir. समझ आ गया। तो पहले क्या किया Yes, है sir. ना, ए बी मेरा टोटल हाइट ऑफ द हाइट है, राइट। सो उसमें से देखो मैं यहाँ पे कौन सा क्या मुझे नोन है, देखो ये हाइट मेरा नोन है, तो ए ई एफ ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल मुझे सी एफ चाहिए। सी एफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सी माइनस ई एफ करूंगा तो सी एफ मिल जाएगा, राइट। सीई टोटल सी माइनस ई एफ इक्वल्स टू सी एफ। और मैं ऑलवेज जो भी ट्राइंगल देखूंगा वो राइट एंगल ट्राइंगल देखूंगा, हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी ट्राइंगल देखूंगा मैं ऑब्जर्व करूंगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ए ई एफ ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ए ई एफ, इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल नहीं होगा तो हाइपोटेनियस नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्लियरली तुम समझ ही रहे हो, इसीलिए जो भी अप्लाई कर रहा हूँ वो सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल है। Yes, sir. ऑल्दो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही टी रेशियो ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेबल है ऐसा नहीं, कोई भी ट्राइंगल के लिए होता है, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड के लिए इतना ही, राइट एंगल ट्राइंगल उसको बाउंड कर दिया हूँ राइट एंगल ट्राइंगल में। सो एईएफ ट्राइंगल में, एईएफ ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, देखो मेरा ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, 60 डिग्री एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरा परपेंडिकुलर, देखो इसका ऑपोजिट जो है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दिया गया है और मुझे ईएफ चाहिए, तो परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस लेके कौन सा टी रेशियो है, Sir, tan theta. tan थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, 60. एई का वैल्यू देखो दिया गया है 28.5,